Today you are studying about ecosystem in the chapter natural vegetation and wildlife. Before today's class, you have studied about the influencing factors of natural vegetation. What is ecosystem? You must have studied this before also in your bio class or in geography class also. See this? Plants occur in distinct groups of communities in areas having similar climatic conditions. The nature of the plant in an area to a large extent determines the animal life in that area. What does this mean? This means that the region where same type of climatic condition is found, the vegetation is also of same type. And according to vegetation, there is the wildlife also. If the climate changes, the vegetation also changes and the wildlife also changes. So this is written in this beginning lines. When the vegetation is altered मतलब जो change हो गया. When the vegetation is altered, the animal life also changes. All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other. They are interdependent in the environment. Okay, thus forming an ecosystem. तो यहाँ पे ना तुमको इकोसिस्टम का एक डेफिनेशन लिखना है. इकोसिस्टम के डेफिनेशन में मेन यही बात समझनी है कि जहां से जहां तक एक तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है तो वहां वैसा ही नेचुरल वेजिटेशन मिलता है, और नेचुरल वेजिटेशन जैसा है तो उसी अकॉर्डिंगली उसी के एडेप्टेशन में वहां के वाइल्ड लाइफ होते हैं. जैसे मान लो ये है मॉनसून फॉरेस्ट है, इंडिया का मॉनसून फॉरेस्ट है. तो मॉनसून फॉरेस्ट में जो डेसिडुअस ट्री है वो मिलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, और वहाँ के एनिमल हैं मेनली वो लायन टाइगर ये सारे एनिमल्स हैं, तरह तरह के बर्ड्स मंकीज ये सारे हैं. लेकिन वही अगर तुम उधर डेजर्ट एरिया में चले जाओ तो एकदम से प्लांट लाइफ चेंज हो जाता है, और प्लांट लाइफ चेंज होगा तो वहाँ का एनिमल लाइफ भी चेंज हो गया. वहाँ के एनिमल किस तरह के मिलेंगे? कुछ बरोइंग एनिमल्स मिलते हैं जैसे माइस, ये स्नेक, डेजर्ट वाले स्नेक जो होते हैं वो, नहीं तो फिर बड़े एनिमल्स में कैमल है, वाइल्ड एस है, यही सब एनिमल उधर मिलेंगे. तो जैसा क्लाइमेट वैसा वेजिटेशन, और जैसा वेजिटेशन वैसा वहाँ का वाइल्ड लाइफ. तो इसी को वहाँ एक अलग इकोसिस्टम मानते हैं. तो डेजर्ट इकोसिस्टम अलग हो गया, मॉनसून इकोसिस्टम अलग हो गया, है ना. हिमालय के हाइट पे चले जाओ तो माउंटेनस इकोसिस्टम में एक अलग इकोसिस्टम बन गया. तो अब यहाँ तुम्हें क्या लिखना है? इकोसिस्टम का आंसर लिखना है. व्हाट इज एन इकोसिस्टम? स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर. आई एम टेलिंग यू द आंसर. व्हाट इज एन इकोसिस्टम? Ecosystem is a vast region. Start writing. Ecosystem is a vast natural region in which similar type of climatic condition is found, and accordingly the natural vegetation and wildlife survives. मैम नेचुरल के बाद क्या है? Natural vegetation and wildlife survives. Thus all the plants and animals in an area, are interdependent
and interrelated all the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment. Comma, forming an ecosystem. In their physical environment, comma, forming an ecosystem. Arsalan, repeat the answer. Ma'am, can I repeat? Yes. Ecosystem is the vast natural region in which similar type of climatic conditions are found. Natural vegetation and wildlife survives. Thus, all the plants and animals in an area are interdependent and interrelated in physical environment, farming and ecosystem. Forming Example. an ecosystem. Huh. So, in an area, the plant life and animal life are interdependent. मतलब वो एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड करते हैं. वहाँ के जितने एनिमल है ना, वो वहीं के एनिमल और वहीं के प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. ठीक है ना. और वहाँ उस पूरे रीजन में एक तरह का फिजिकल एनवायरनमेंट होता है. फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होता है और साथ ही साथ वहाँ के बाकी फिजिकल एनवायरनमेंट भी, जैसे सॉइल, माउंटेन, रिवर, जो भी वहाँ है, वो उस एरिया में वो कंप्लीटली वहाँ के एनिमल और प्लांट जो है अपने को एडेप्टेड रखते हैं, है ना. और दूसरे जगह के दूसरे इकोसिस्टम के एनिमल यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते हैं और यहाँ के एनिमल दूसरे इकोसिस्टम में सरवाइव नहीं कर सकते हैं. तुम जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जो मान लो टाइगर है, टाइगर, तो टाइगर को अगर हम पोलर रीजन में रख दें तो वो थोड़ी सरवाइव करेगा, बिल्कुल नहीं सरवाइव करेगा, क्योंकि वो अडेप्टेड है अपने एनवायरनमेंट में, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में. उसको कितना टेम्परेचर, कितने प्रेसिपिटेशन, किस तरह के लैंडफॉर्म में रहने की आदत है, वो उसी जगह पे रह सकता है. वहीं उसका ग्रोथ होगा, उसका पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और दूसरे जगह जाने से जो डिफरेंट इकोसिस्टम में वो उसका एडेप्टेशन नहीं हो पाएगा, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा और वो सरवाइव नहीं करेगा. तो तुम्हारा हो गया इकोसिस्टम, है ना. अब इकोसिस्टम में ही थोड़ा सा और जो भी डिटेल है इसको देख लो यहाँ पे. Human beings influence the ecology of a region. Human beings also influence the ecology of a region. अभी ecology एक word हो गया, ecosystem से ही एक word क्या हो गया, ecology. तो ecology क्या है? Ecology is the science which deals with the study of plants and animals and their environment, है ना. तो इकोलॉजी उस साइंस को, उस स्टडी को कहते हैं जो इन सब चीजों को ये करता है, स्टडी करता है. They utilize the vegetation and wildlife. Human beings utilize the vegetation and the wildlife. The greed of human beings lead to overutilization of these resources. ह्यूमन बींग्स क्या है, अगर एक्सेस यूटिलाइज करते चले जाते हैं फॉरेस्ट का, एनिमल का, तो वो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा और फॉरेस्ट के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो जाएंगे. They cut the trees and kill the animals, creating ecological imbalance. तो अगर हम फॉरेस्ट काटते चले जाएं तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट पे ही वहां के वाइल्ड लाइफ डिपेंड करते हैं. फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो ये पूरा इकोसिस्टम हो जाएगा वहां का. तो कहने का मतलब ये कि जितना भी नेचुरल एसेट है उसको ना वैसे ही बचा के, उसको प्रोटेक्ट करके, उसको कंजर्व करके रखना चाहिए.
बस अपनी जरूरत भर इस्तेमाल करें और किसी चीज का एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए. As a result, some of the plants and animals have reached to the verge of extinction. इकोसिस्टम का ध्यान रखें तो क्या होगा कि एक टाइम आएगा जबकि हमारे प्लांट और एनिमल का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा और वो कम हो जाएंगे. सुधांशु सुधांशु अपनी आवाज कम करो उधर से. ये देख रहे हो ना, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब समझ गए कि एक इकोसिस्टम के अंदर पूरा फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस है, पूरे वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस है, और इसमें से कोई चीज अगर घट जाता है तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है. जैसे अगर हमारे मॉनसून फॉरेस्ट में टाइगर भी है, हर्बीवोरस एनिमल्स भी है जो ग्रास और प्लांट पे डिपेंड करते हैं, तो सबका रहना जरूरी है. अगर हम पूरे टाइगर को खत्म कर दें, हंटिंग करते करते समाप्त कर दें अगर, तो क्या हालत होगी कि बहुत हर्बीवोरस जो एनिमल्स है ना, वो उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगा, और वो बढ़ जाएंगे तो सारा प्लांट लाइफ खत्म हो जाएगा, प्लांट कवर का खत्म हो जाएगा वो सब. तो ये कि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा एनवायरमेंट में. तो कहने का मतलब कि हर एनिमल का, हर प्लांट स्पीसीज का अपने इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस है और सबका सरवाइव करना जरूरी है. टाइगर का भी रहना जरूरी है तो डियर का भी रहना जरूरी है. As a result, some of the plants and animals have reached the verge of extinction. नहीं केयर करेंगे तो ये एकदम समाप्ति के कगार पे पहुंच जाएंगे. At the verge of extinction. Do you know that a very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome. अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बना लो. What is a biome? लिखो. What is a biome? And write the answer. A very large ecosystem. A very large ecosystem. और इकोसिस्टम का मतलब समझ गए हैं कि जहां तक सेम टाइप का क्लाइमेट है और उसी के अनुसार वहां का वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, तो उसको एक इकोसिस्टम कहते हैं. तो अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल इज कॉल्ड अ बायोम. इसी को ना नेचुरल रीजन भी कहा जाता है. बायोम को ही नेचुरल रीजन भी कहा जाता है. पूरे ग्लोब को ना, पूरी दुनिया को कई सारे नेचुरल रीजन में बांटा गया है, जैसे टेम्परेट रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, मॉनसून रीजन, ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन, ऐसे करके. तो ये एक एक बायोम हो गया. क्या आंसर लिखे, रिपीट करो मान्या. A very large ecosystem on land having distinct types of vegetation and animals is called biome. हाँ, तो बायोम का आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान कैसे होता है, वहां के प्लांट्स और ट्रीज से वहां उसका पहचान होता है. जैसे इक्वेटोरियल रीजन में जाओ तो वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, तो मॉनसून फॉरेस्ट में अगर जाओ तो वहां डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं. डेसिडुअस का मतलब कि जो अपने पत्ते एक सीजन में गिरा देते हैं अपने मॉइस्चर को स्टोर करने के लिए, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं. SHED, शेड माने पत्ते गिरा देना. अगला क्वेश्चन लिखो. नेम द मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. Name the major types of vegetation found in India. Ma'am, tropical near forest or tropical deciduous forest. हाँ, अमृत गौतम स्पीकिंग. Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ से देखो और इसको लिखो. फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. नंबर 1, इंडिया के वेजिटेशन कौन कौन से? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नंबर 1 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट.
ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, नंबर 2 ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। लिखने के साथ साथ इसको याद कर लो, फिर बिना देखे बोलोगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। नंबर 3 ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। Number 4 mountain forest. Number 5 mangrove forest. Arsalan, repeat karo. What are the 5 types of natural vegetation of India? Ma'am, tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest and scrubs, mountainous forest and mangrove forest. सबको याद हो गया? इसके साथ मन में याद भी कर लो। ये एग्जाम में आता है कि इसका नाम लिखना और कोई एक को डिस्क्राइब करना। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट नाम से ही क्लियर है कि यहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है, और ज्यादा रेनफॉल होगा तो ये फॉरेस्ट एवरग्रीन होता है, एवरग्रीन होता है। पूरे ग्लोब पे देखोगे ना तो इक्वेटर के पास, इक्वेटर के अराउंड एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में भी जहाँ रेनफॉल ज्यादा है वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे इंडिया में क्लाइमेट पढ़े थे ना, तो हेवी रेनफॉल वाला जो एरिया है वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। बता सकते हो कौन सा हेवी रेनफॉल का एरिया है? जो बच्चे क्लाइमेट ठीक से पढ़े हैं बता देंगे। हेवी रेनफॉल कहाँ ज्यादा होता है बताओ? द एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट, इक्वेटोरियल रीजन में। हाँ वो तो ग्लोब पे ना, और इंडिया तो इक्वेटर से थोड़ा दूर है, लेकिन इंडिया में ज्यादा रेनफॉल वाले कौन कौन से 2 रीजन हैं? एक वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये सब हैं, और दूसरा क्या है? आसाम रीजन, हाँ ना, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। यस। या तमिलनाडु के कोस्ट भी है जहाँ ज्यादा रेनफॉल होता है। तो जहां भी ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो एरिया में क्या क्या लिखेंगे? Areas of Western Ghat and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast। और भी है, अरुणाचल प्रदेश सब इसी में आता है। ये मैप देख लो एक बार, मैप से बहुत क्लियर होता है। ये इंडेक्स देख रहे हो ना, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहला। आर यू सीइंग दिस? तो ट्रॉपिकल, यहाँ देखो, जब रेनफॉल के मैप में भी ना ये बनाया गया था ये एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है इंडिया में, मोर देन 400 सेंटीमीटर वाला ये एरिया है रेनफॉल का, इसलिए यहाँ पे बहुत ही थिक ग्रोथ होता है फॉरेस्ट का, जिसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ये रीजन हो गया तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है। दिस रीजन ऑल्सो हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन these coastal parts of Odisha, West Bengal, etc. and the whole of eastern states, ये इतना सारा, ये जो ईस्टर्न स्टेट्स है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम सब है, और ये कुछ पोर्शन इधर का वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न पार्ट है ना। और ये कौन सा स्टेट है? ये है सिक्किम, तो सिक्किम का भी ये सदर्न पार्ट हो गया थोड़ा। तो ये सारे जो डार्क कलर से शेड किया हुआ है वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। देख रहे हो, सबसे बड़ा फॉरेस्ट इंडिया का यही है। नंबर सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसी का दूसरा नाम है मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। और तीसरा क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे माउंटेन है, जैसे ये कश्मीर वाला एरिया, कश्मीर, लद्दाख, उत्तरांचल,
हिमाचल प्रदेश ये एरिया, इसको क्या कहते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट। यहाँ से यहाँ तक माउंटेन फॉरेस्ट फैला हुआ है। अगर एग्जाम में तुम्हें माउंटेन फॉरेस्ट दिखाने के लिए कहा जाएगा तो ये लाइन ड्रॉ कर दोगे, देखो ये वाला, इंडिया के इस कॉर्नर से, है ना, यहाँ से लेके और नेपाल का ये साउथ वेस्टर्न कॉर्नर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये ऊपर जितना मिल हो गया अलग, वो सब क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट है। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट का एक और भी रीजन है, अरुणाचल प्रदेश भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हिमालयन रीजन है, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में। तो इसलिए कौन कौन से स्टेट का नाम आ गया माउंटेन फॉरेस्ट में? कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो विच फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? बोलो। मेरी बात को सुने होगा ध्यान से? Tropical deciduous forest. हाँ, वेरी गुड, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये जो सेकंड वाला फॉरेस्ट, यहाँ सेकंड टाइप लिखा हुआ है ना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, वही है इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, वही है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इधर देखो, ये जो लो रेनफॉल वाला एरिया है, लो रेनफॉल का ये एरिया है राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, ये सब वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो पार्ट है ये लो रेनफॉल का एरिया है। और इंटीरियर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये रेनफॉल में तुम लोग पढ़े थे इसको, तो ये भी हो गया लो रेनफॉल का एरिया। तो इस दोनों में आपको ये फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये लास्ट वाला ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। समझ गए? क्यों मिलता है? क्योंकि ये लो रेनफॉल का एरिया है। तो अब क्या बच गया? माउंटेन फॉरेस्ट बता ही दिए, एक बच गया ये माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट ना सारे डेल्टा रीजन में मिलता है। जैसे ये कृष्णा का डेल्टा हो गया, देख रहे हो यहाँ पे कृष्णा रिवर का डेल्टा है, ये महानदी का डेल्टा है, ये सब यहाँ पे मिलता है। ये सुंदरबन डेल्टा है। तो सारे डेल्टा रीजन में ना, जो ईस्टर्न कोस्ट का डेल्टा है, इसमें कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गए, tropical rain forest, tropical deciduous forest, mountain forest, mangrove forest and tropical thorn forest. एक क्वेश्चन लिखो तो, on an outline map of India, show the natural vegetation types. On an outline map of India, इंडिया का सिर्फ एक आउटलाइन मैप लेना इस तरह का, और इसमें ये अंदर वाले सब डिमार्केटिंग लाइन जो है, ये लाइन ड्रॉ करके और नेचुरल वेजिटेशन बनाओगे। 5 तरह का दिखाना है इसमें। एंड ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द नेचुरल वेजिटेशन टाइप्स, या शो द टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये कर्सर जहां जा रहा है ना माउस, बताओ तो ये कौन सा फॉरेस्ट है? Which forest is this? Tropical thorn forest. Very good. And which forest is this in Arunachal Pradesh? Mountain Mountain forest. mountain forest. Mountain. हाँ, ठीक है। और सिक्किम में कौन सा फॉरेस्ट है बताओ? Mountain. Tropical सिक्किम में भी माउंटेन फॉरेस्ट। और ये कौन सा फॉरेस्ट हुआ बताओ? Mountain forest. ये भी माउंटेन forest. Mountain forest. ठीक है। अब ये बताइए, ये इंडिया का जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, ये कौन सा फॉरेस्ट? Tropical deciduous forest. Tropical हाँ, वेरी गुड। चलिए फिर एक और पूछते हैं। ये जो गोदावरी कृष्णा का डेल्टा, महानदी रिवर का डेल्टा, ये सुंदरबन का डेल्टा, ये डेल्टा रीजन में कौन से फॉरेस्ट होते हैं? Mangrove forest. मैंग्रोव फॉरेस्ट, MANGROVE, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो एक एक करके हम इन सब का डिटेल पढ़ेंगे। आज एक कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है 5 मिनट, तो एक कर लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? सबसे पहले हम उसका क्लाइमेट बताएंगे कि जहाँ पर ज्यादा रेनफॉल है, जैसे 200 सेंटीमीटर से ऊपर,
above 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है। above 200 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये हो गया कि 200 से लेके 400 या 1000 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो ये मैक्सिमम रेनफॉल का एरिया होता है और इसका लोअर लिमिट है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जहां भी अबव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो वहां पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। और यहाँ का समर सीजन बहुत मतलब कम ड्राइनेस वाला होता है, शॉर्ट ड्राई सीजन यहाँ होते हैं, मतलब ऐसा सीजन जहाँ की रेनफॉल नहीं हो वैसा बहुत शॉर्ट पीरियड होता है। यहाँ ट्रीज की हाइट कितनी होती है? अबव 60 मीटर्स, है ना, 60 मीटर्स एंड अबव भी हो सकता है। बहुत ऊंचे ट्री मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा रेनफॉल है और टेम्परेचर भी इतना सफिशिएंट है कि अबव 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रहता है और रेनफॉल भी 200 सेंटीमीटर से ऊपर है। तो यहाँ प्लांट्स का ग्रोथ बहुत रैपिड होता है ना। पत्ते भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लीव्स आर ब्रॉड एंड ट्रीज आर वेरी टॉल एंड द फॉरेस्ट इज वेरी डेंस। Since the region is warm and wet throughout the year, it has luxuriant vegetation of all kinds. Luxuriant मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत फास्ट ग्रोथ है। सारे ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है यहाँ वेजिटेशन का। मतलब बड़े ट्रीज भी हैं, उसके नीचे छोटे छोटे श्रब्स भी हैं, ट्रीज पर चढ़ने वाले क्रीपर्स, क्लाइंबर्स भी हैं, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इस फॉरेस्ट को मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। छोटे छोटे प्लांट से लेकर के 60 मीटर हाइट तक के प्लांट्स भी मिलते हैं। एंड देयर इज नो टाइम, नो डेफिनिट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, है ना। पत्ते गिरने का कोई सर्टेन टाइम नहीं है, सर्टेन डेफिनिट टाइम नहीं है। पत्ते पुराने होंगे तो एक एक करके अपना गिरते रहेंगे, लेकिन इसीलिए फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन दिखाई देता है ना। मॉनसून फॉरेस्ट की तरह नहीं कि एक सीजन आता है ऐसा 4 से 8 हफ्ते का कि उसमें पूरे पत्ते गिर जाते हैं और जंगल बिल्कुल खाली दिखाई देता है, सिर्फ उसके स्टेम्स और ब्रांचेस दिखाई देते, लीव्स नहीं रहते। वो होता है डेसिडुअस फॉरेस्ट में। और इसमें क्या है, ये फॉरेस्ट जब भी किसी भी सीजन में देखो ये हमेशा एवरग्रीन है। सम ऑफ कॉमनली इंपॉर्टेंट ट्रीज, अब यहाँ ट्रीज के नाम याद करने हैं आपको कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में या रेन फॉरेस्ट में मेन इंपॉर्टेंट ट्रीज क्या क्या है। तो एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना। ठीक है, क्या क्या ट्रीज के नाम है, रिपीट करो। एबोनी बोलो। Ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. हाँ, तो ये ना हार्डवुड ट्रीज होते हैं। हार्डवुड मतलब इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और इसे फर्नीचर ये सब भी बन सकते हैं। और रबर का तो दूसरा ही यूज है, रबर वाले ट्रीज से ना लैटेक्स इकट्ठा करके रबर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और सिंकोना एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्री है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इसका, सिंकोना, है ना। इसके बार्क से मेडिसिन बनता है। बार्क मतलब स्टेम के ऊपर जो उसका पेड़ का छाल होता है ना, उससे दवा बनती है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में वो काम आता है। उसका नाम है कुनैन, मेडिसिन का नाम है कुनैन, जो कि सिंकोना के बार्क से बनता है। अब तुमको क्या करना होगा अपने आंसर में, यहाँ के इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से हैं, इस तरह के फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल रहते हैं। तो एलिफेंट्स, मंकीज, लेमर और डियर। लेमर भी मंकी का ही एक वैरायटी है ना। The one-horned rhinoceros are found in jungles of Assam and West Bengal. वेस्ट बंगाल और असम में वन हॉर्न राइनोसेरस होते हैं। वन हॉर्न राइनोसेरस का पिक्चर तुम लोग देखे होंगे, तो सामने से उसके नोज के थोड़ा ऊपर एक ये रहता है, एक ये रहता है, सिंग निकला रहता है। Besides these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpions, snails are found in these jungles. है ना, बहुत तरह के वैरायटी ऑफ बर्ड्स मिलती हैं। बैट मतलब चमगादड़, स्लॉथ मतलब एक बहुत ही स्लो चलने वाला एक डल टाइप का एक एनिमल नहीं मिलता है वो,
और स्कॉर्पियन, स्नेल्स, तरह तरह के बिच्छू, घोंघे, ये सब तरह तरह के, मतलब जो वेट एरिया में रहने वाले एनिमल है ना, क्योंकि जंगल हमेशा नीचे से गीला रहता है, उसका ग्राउंड जो है ना वेट रहता है। तो आज का पोर्शन हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन लिखो। डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्वेश्चन लिखो, डिस्क्राइब